Hello students, good morning to all of you. Today I am going to start our new chapter of class 7, that is respiration in organisms. Means organisms के अंदर respiration process मतलब सांस लेने की प्रक्रिया कैसे की जाती है. One day Buju was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. Okay, he was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. He ran fast and reached the bus stop in a few minutes. He was breathing rapidly. His grandmother, asked him why he was breathing so fast. Buju told her that he came running all the way. But the question got stuck in his mind. He wondered why running makes a person breathe faster. The answer to Buju's question lies in understanding why we breathe. Breathing is a part of respiration. Let us learn about respiration. So, all of you come to know about the story how Buju was eagerly come to know why we are used to breathe so much fast when we used to run. So, the question of why do we respire? सबसे पहले हम पूछेंगे कि हम respire क्यों करते हैं. As in chapter 2, you learn that all organisms are made up of small microscopic units called cells. हमने जैसा पढ़ा हुआ है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किससे बने होते हैं, माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने होते हैं जिनको हम कहते हैं सेल्स. A cell is the smallest structural and functional unit of an organism. एक सेल होती है जो कि सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की. Each cell of an organism performs certain functions. हर सेल ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है, जैसे कि such as nutrition, transport, excretion and reproduction. To perform these functions, the cell needs energy. इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग, वी रिक्वायर एनर्जी. व्हेन वी यूज टू ईट, वी रिक्वायर्ड एनर्जी. व्हेन वी यूज टू स्लीप, वी रिक्वायर्ड एनर्जी. व्हेन वी यूज टू रीड, वी रिक्वायर्ड एनर्जी. दैट मीन्स for doing any body activity we required energy. But where does this energy come from? Now can you say why your parents insist that you should eat regularly? When we are talking about energy, our parents always used to say that please eat regularly and eat hygienic food. Why? Because this food gave us energy. Now the food has stored energy. food के पास एक energy stored होती है which is released during respiration. जब हम food खाते हैं तो respiration process होती है. उस respiration process के दौरान हमारा food energy release करता है. Now therefore all living organisms respire to get energy from food. तो जितने भी living organisms होते हैं वो respire करते हैं to get energy from food. Now ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर. मतलब जब हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं तो हम एयर को ब्रीद करते हैं. यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन. वी नो दैट कि एयर कंटेन्स ऑक्सीजन. वी ब्रीद आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, पर जब ब्रीद आउट करते हैं तो हम क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. Okay, the air we breathe in, it's transported to all parts of the body and ultimately to each cell. When we are used to breathe in the air, that is oxygen, that oxygen reach each and every part of the body including all the cells. Now in the cells, oxygen in the air help in the breakdown of food. When our body cells used to take that food is going to be breakdown by the oxygen. Now the process of breakdown of food in the cell with the help of release of energy is called cellular respiration. Means जब हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है और वो डिफरेंट सेल्स के पास पहुंचती है, वहाँ पे वो फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है, तो उसको क्या बोला जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जाता है. नाउ सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है. In the cell, the food is broken down into carbon dioxide and water. सेल के अंदर जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है किस में, कार्बन
डाइऑक्साइड और वाटर में, एंड यूजिंग ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. मतलब जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन. Now, food can also be broken down without using oxygen. ऑक्सीजन के बिना भी फूड को ब्रोकन डाउन किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर. उसको हम बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन. मतलब उसको जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको एरोबिक बोला जाता है. जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उसको अनएरोबिक बोला जाता है. Now, here is the equation. When glucose in the presence of oxygen going to be breakdown, it is breakdown into carbon dioxide plus water and plus energy. You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. मतलब yeast जो होता है वो air के absence में survive कर सकता है. They are called anaerobes. उनको बोला जाता है anaerobes. Now they get energy through anaerobic respiration. वो anaerobic respiration के थ्रू एनर्जी गेन करते हैं. In the absence of oxygen, glucose break down into alcohol, carbon dioxide. अब सेकेंड इक्वेशन है. फर्स्ट इक्वेशन एरोबिक इक्वेशन थी, एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन थी जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी में. अब जो सेकंड है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है जिसके अंदर ग्लूकोज इज गोइंग टू बी इन ब्रेक डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन. नाउ आवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर. जो हमारे मसल सेल्स होते हैं वो भी रेस्पायर करते हैं अनएरोबिकली. मतलब anaerobically का मतलब in the absence of oxygen but only for a short time when there is a temporary deficiency of oxygen. जब थोड़ी सी हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब. during heavy exercise, fast running, cycling, walking and for many hours or heavy weight lifting, the demand for energy is high. जब हम कोई चीज़ हैवी एक्सरसाइज करते हैं लाइक साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं या फिर वेट लिफ्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी लिमिटेड. हमारा जो ऑक्सीजन का सप्लाई है जिसकी हेल्प से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो लिमिटेड होता है. देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस. तो क्या होता है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है मसल सेल्स में उस एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए. So glucose in the absence of oxygen gives us lactic acid plus energy. जब हमारे बॉडी का जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब ब्रोक डाउन होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में. नाउ दिस इज, हैव यू एवर वंडर व्हाई यू गेट मसल्स क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज. जब आप एक हैवी एक्सरसाइज करते हो उसके बाद आपके बॉडी में मसल्स क्रैम्प्स होने लगते हैं, मतलब मसल्स पेन होने लगता है. द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल रेस्पायर अनएरोबिकली. जब जो क्रैम्प होते हैं वो किस लिए होते हैं, क्योंकि आपका जो बॉडी के जो मसल्स है वो अनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं. द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड. और जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है. द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प्स. जो एक्यूमुलेशन हो जाता है लैक्टिक एसिड का मसल्स के अंदर उसको क्रैम्प्स कहा जाता है. मतलब इकट्ठा हो जाते हैं बहुत सारा लैक्टिक एसिड मसल्स में. वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर हॉट वाटर बाथ. जब हम एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद हॉट वाटर बाथ के लिए जाते हैं तो हमें रिलीफ मिलता है उस पेन से. Now, can you guess why it is so? आपको लगता है ये क्यों होता है? हॉट वाटर बाथ और द मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. जब हॉट वाटर बाथ लेते हैं या फिर मसाज कराते हैं तो हमारी बॉडी का जो सर्कुलेशन होता है वो इम्प्रूव होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपरली पहुंचने लगती है मसल सेल्स में. और उसकी वजह से क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन का रिजल्ट अच्छा आता है तो उसकी वजह से हम कंप्लीट ब्रेक डाउन लैक्टिक एसिड को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर पाते हैं ईजिली इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ब्रीदिंग. Close your nostrils and mouth tightly and look at a watch. आपको अपने नॉस्ट्रिल्स मतलब नोज़ और माउथ को टाइटली क्लोज करना है और वॉच की तरफ देखना है. यू फील आफ्टर सम टाइम. आपको क्या फील होता है थोड़ी देर बाद. हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज. कितनी देर तक आप दोनों चीज़ों को क्लोज रख सकते हो. नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ. कितनी देर तक आप सांस रोक सकते हो. सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट
ब्रीदिंग, मतलब आप ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते हो सांस लिए बिना. सो ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन द ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच in the carbon dioxide. Now, what is the meaning of breathing? The meaning of breathing is taking in oxygen and giving out what? Carbon dioxide. Okay. Now, टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन. जब हम एयर को अंदर लेते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है उसको इनहेलेशन बोलते हैं. एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन. और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकालते हैं तो उसको एक्सहेलेशन बोला जाता है. इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम. ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है जो बार बार होती रहती है, परफॉर्म होती रहती है हमेशा पूरी लाइफ टाइम तक के लिए हर ऑर्गेनिजम्स में. द नंबर of times a person breathes in a minute is termed as the breathing rate. अब अगर आपको फाइंड आउट करना है कि आपका ब्रीदिंग रेट कितना है तो आप कितनी बार एक मिनट के अंदर ब्रीथ करते हो वो आपका ब्रीदिंग रेट कहलाता है. ओके. ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस ऑल्टरनेटली. जब ब्रीथ करते हो तो इनहेलेशन होता है तो एक्सहेलेशन होता है, फिर इनहेलेशन होता है फिर एक्सहेलेशन, मतलब इट टेक्स प्लेस ऑल्टरनेटली. नाउ अ ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन. एक कंप्लीट ब्रीथ को क्या कहा जाता है? जब एक आप इनहेल करते हो और एक एक्सहेल करते हो, इट इज़ अ कंप्लीट वन ब्रीथ. ओके. नाउ वुड you like to find out breathing rate? Do you want to know whether it is constant or it changes according to the requirement of oxygen by the body? आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है ब्रीदिंग रेट, किस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका ब्रीदिंग रेट चेंज होता है या फिर कांस्टेंट रहता है, उसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है. जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग, हाउएवर इफ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीदिंग. ब्रीद इन एंड आउट नॉर्मली. फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट इन अ मिनट. आपको काउंट करना है कितनी बार ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हो आप एक मिनट के अंदर. नाउ डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम एज यू एक्सहेल. जितने नंबर ऑफ टाइम आपने इनहेल किया उतने ही नंबर ऑफ टाइम आपको एक्सहेल करना है. नाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट. उससे आप पता कर पाओगे आपका ब्रीदिंग रेट क्या है. और फिर नेक्स्ट टाइम आपको एक वॉक लेनी है या फिर आपको रन करना है, उसके बाद अपना ब्रीदिंग रेट रिकॉर्ड कीजिए. And you finish and also further complete rest. Tabulate your finding and compare your breathing rates under different condition with those of your classmates. आपको अपने breathing rate को compare करना है. From the above activity you must have realized that whenever a person needs extra energy, जब वो ज़्यादा काम करता है, जिसको जब उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो ज़्यादा फास्टली ब्रीथ करता है. मतलब जब आप नॉर्मली बैठे हो तो आप इतना ब्रीथ नहीं करते हो फास्ट, लेकिन जब आप कुछ वर्क करते हो तो आपको ज़्यादा ब्रीथ करना पड़ता है. As a result, more oxygen is supplied to our cells. It speeds up the breakdown of food and more energy is released. Thus, this explanation why do we feel hungry after physical activity. तो हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसके बाद हमें काफ़ी भूख लगती है. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. When you feel drowsy, does your breathing rate slow down? जब आप थकान महसूस करते हो तो आपका ब्रीदिंग रेट भी क्या हो जाता है? स्लो डाउन हो जाता है. सो डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन. तो आपको आइडिया आ जाता है कि आपकी बॉडी में सफिशिएंट ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा है. सो here is figure 10.3 shows the various activity carried out by a person during a normal day life. ओके. सो यहाँ पे देखिए काम कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं, चढ़ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं. ये सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मली हर कोई करता है. कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बी द स्लोएस्ट. कौन सी एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा ब्रीदिंग रेट होगा. नाउ एंड इन विच इट विल बी द फास्टेस्ट. और किस में सबसे ज़्यादा फास्ट होगा. असाइन द नंबर टू द पिक्चर्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट ब्रीदिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस. सो दिस एक्टिविटी स्टूडेंट्स यू हैव टू डू बाई योर सेल्फ सो दैट यू कैन कम टू नो कि आपको आइडिया आ जाएगा कौन सी एक्टिविटी में आपको सबसे ज़्यादा आपका हाई ब्रीदिंग रेट होगा, कौन सी एक्टिविटी में आपका ब्रीदिंग रेट स्लो होगा. नाउ हाउ डू वी
ब्रीथ, हम ब्रीथ कैसे करते हैं. सो लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. Normally we take in air through our nostrils. When we inhale air, it passes through our nostrils into nasal cavity. वो हमारे nostril से nasal cavity में जाता है, वहाँ से वो lungs के पास पहुँचता है. lungs के help से, wind pipe की help से lungs are present in chest cavity. lungs कहाँ पे? हमारे chest cavity में. तो this cavity surrounded by the ribs. ये cavity हमारी ribs से surrounded है. On the sides a large muscular sheet called diaphragm. एक diaphragm होता है जो कि इसके अंदर होता है. ओके, नाउ फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी. जो चेस्ट कैविटी का फ्लोर होता है वो डायफ्राम से बना होता है. एंड ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड रिब केज. तो जब ब्रीदिंग लेते हैं तो जो हमारा डायफ्राम होता है और जो रिब होते हैं वो मूव करते हैं. ड्यूरिंग इनहेलेशन, अब यहाँ पे आपको मैं एक डायग्राम दिखा देती हूँ जिसका आपको आइडिया आ जाएगा. ये डायफ्राम है, ये हमारे रिब्स हैं और इसमें हमारे लंग्स हैं. तो ये जो रिब्स और डायफ्राम है ये मूव करते हैं जब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं. तो हम प्रोसेस देखते हैं किस तरीके से होती है. ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप. जब इनहेल करते हैं तो हमारे जो रिब्स होते हैं ऊपर आ जाते हैं एंड आउटवर्ड, एंड डायफ्राम मूव्स डाउन. जब हम इनहेल करते हैं तो रिब्स ऊपर आते हैं और डायफ्राम नीचे जाता है. नाउ दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन योर चेस्ट कैविटी. ये मूवमेंट क्या करता है? आप सांस लोगे तो आप ध्यान से देखना, आपके रिब्स ऊपर की तरफ आते हैं और डायफ्राम नीचे की तरफ आता है. आपको मूवमेंट फील होगा और इसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो चेस्ट में होती है वो स्पेस बढ़ जाती है और उसके अंदर जल्दी से एयर रश करती है लंग्स की तरफ. नाउ द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर. जब लंग्स में एयर फिल हो जाती है तो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव डाउन. रिब्स नीचे आते हैं और डायफ्राम क्या करता है? अंदर की तरफ आ जाता है, मतलब ऊपर की तरफ आ जाता है. ओके, तो रिब्स नीचे आते हैं और डायफ्राम ऊपर जाता है. मतलब दोनों कंडीशन में अपोजिट फंक्शन परफॉर्म हो रहा है. जब हम इनहेल करते हैं तो रिब्स ऊपर आते हैं और डायफ्राम नीचे जाता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो रिब्स नीचे आते हैं और डायफ्राम ऊपर आता है. ओके, सो दिस movements in our body can be felt easily. Take a deep breath. Keep your palm on the abdomen. Feel the movement of your abdomen. What do you find? अब हमें आप घर पे आराम से नॉर्मली बैठ के इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हो. After having learned that during breathing these are the changes in the size of the chest cavity, children got involved in the chest expansion competition. So right now you're at home, so you can perform after your school is going to be open with your friends. You can see the human respiratory system. Here is the nasal passage, oral cavity, pharynx, trachea, lungs is there, ribs is there, and diaphragm is there. This is the total diagram of respiratory system. Everyone was boasting that he could expand the maximum. How about doing this activity in the class with your classmates? So students, for today I'm going to complete my session. For the next video, just wait and watch. Till then students, bye and take care.